Hello students, how are you all? So today we are going to start the chapter number 1 of class 10 science, that is chemical reactions and equations. होप सो आपके पास सारी नोटबुक्स और बुक्स हैं. जब भी मैं यहाँ पे बोर्ड वर्क कर रहा हूँ तो आपका क्लास वर्क हो जाना चाहिए. So starting from the chapter number 1 of class 10 science, that is chemical reaction and equation. The first topic that we think or we see the changes happening in our surroundings. ऐसे बहुत सारे changes होते हैं that we see in our surroundings. What type of changes do we see in our surroundings? That is dependent upon your surrounding. कि आपके आजू बाजू में क्या क्या changes होते हैं? That is dependent upon you. Where do you live? And in which condition, environmental conditions, do you spend your day? For example, we may see the change, tearing of a paper. कि आज पेपर पढ़ना ही नहीं है, तोड़ दिया. Simple. This type of changes that I have broken a chalk piece. तो 2 chalk piece हो गए. So these are the changes. Any kind of change can be seen in our surrounding. ऐसे thousands of different types of changes do we see in a single day. एक ही दिन में thousands of changes हम देख लेते हैं. So what are the changes? तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, चौक पीस का टूटना, tearing of the paper, breaking of the wood, rusting of iron vessels. Iron vessels rust हो जाते हैं, है ना. Iron vessels क्या हो जाते हैं बेटा? Rust हो जाते हैं. फिर कोई केमिकली चेंज अगर आप देखें तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा हुआ बेटा 9th में. वी हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इन दी क्लास 9. व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस, व्हाट आर द केमिकल चेंजेस. अभी तो गर्मी हो रही है तो बर्फ का पिघलना, द मेल्टिंग ऑफ आइस, conversion of water into water vapor, again conversion of vapor into water and water into ice. This is also a change. So all these changes can be divided into 2 types, that is physical change and a chemical change. ये सारी changes को हम कितने में divide कर सकते हैं? 2 parts में. Either it is a physical change or either it is a chemical change. And what is a physical change and what is a chemical change that we have learnt in class 9 science? फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. What is a physical change? In physical change only physical appearance change. वो देखने में सिर्फ change होता है. पहले बर्फ था, अभी पानी बन गया, पानी में से वेपर बन गया. That is a physical change. Now what is there in a chemical change? What do you mean by chemical change? Not only physical appearance but the properties of a compound change. उनकी properties change हो जाती है. क्या change होता है बेटा? Properties. एक simple सा मैं एक example देता हूँ कि for example मेरे पास है water H2O in the solid form, that is ice. Now again I have H2O in the liquid form. तो ये क्या है बेटा? ice. ये क्या है? water, liquid. Clear? Now again H2O gets converted into water vapor, that is gaseous state. तो यहाँ पे S, L और G क्या दिखाते हैं? solid, liquid and gas, and that is water vapor. Clear? So that is water vapor. तो यहाँ पे देखो बेटा, जब वो आइस था, here it is H2O. In liquid state it is also H2O. In the water vapor state, that is gaseous state, it is H2O. तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें कौन कौन से एटम्स है बेटा? हाइड्रोजन के एटम्स है और ऑक्सीजन के एटम्स है. हाइड्रोजन माने H और ऑक्सीजन माने O. सो द एटम्स रिमेन्स सेम. एटम्स में कोई चेंज होता नहीं है. उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होगा नहीं. अगर हम दूसरा कोई केमिकल रिएक्शन देते हैं, दैट बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन, दैट इज कंबशन ऑफ कार्बन. कार्बन माने कोल. कार्बन क्या होता है बेटा? कोल. जो हम कोल. क्लियर? सो इट इज इन सॉलिड इन स्टेट. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज द कंबशन रिएक्शन. कोल को जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और धुआं निकलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. जो गैस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे अगेन वाटर वेपर को वाटर में और वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट कैन वी कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन? नो. हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं है. सो वी कैन से दिस इज ए फिजिकल चेंज एंड दिस इज ए केमिकल चेंज. कंबशन ऑफ कोल इज ए केमिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज ए फिजिकल चेंज. तो उसका दूसरा पॉइंट मिल गया कि भाई यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होती, यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होती है. दूसरा पॉइंट क्या है? ये इंटरकन्वर्टेबल है, ये रिवर्सिबल है, ये उतना इजीली रिवर्सिबल नहीं है.
physical changes are easily reversible but chemical changes are not easily reversible, but the chemical changes are not easily reversible। वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता नहीं है बेटा। थर्ड डिफरेंस, no new substance is formed, H2O, 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 but here carbon and oxygen combines and forms carbon dioxide, carbon and oxygen combines and forms the carbon dioxide, so new substance are formed। So this is a simple difference between a physical change and a chemical change। As we are learning the chemistry, chapter 1, that is chemical reaction and equation, it means it is our chemistry। In our chemistry we do not bother about the physical change, हम physical change के बारे में ज़्यादा सीखने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो easy भी होता है, आप खुद समझ जाओगे। हम किस में हमें ध्यान देना है बेटा? केमिकल चेंजेस में। क्या ध्यान देना है? व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का एक एग्जांपल ले तो कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कोल, कंबशन का मतलब जलाना, कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कोल इट मींस कार्बन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है बेटा? कोई भी केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। अभी रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन क्या होता है? यही केमिकल चेंज को अगर हम केमिकली इंटरप्रेट करते हैं, कोई भी केमिकल चेंज को, केमिकल चेंज यानी वर्ड फॉर्मेशन होता है, कंबशन ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ये वर्ड है, तो उसको अगर हम इन्हीं वर्ड्स को हम केमिकली अगर बोले दैट कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, सो अगर इसे हम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको देखना है बेटा कि ईच एंड एवरी केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज सिंपल है कि भाई बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल रिएक्शन क्या होगा? कंबशन ऑफ कोल और कंबशन ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अगर उसको आप लेटर्स में उनके सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करते हो, वही वर्ड फॉर्मेशन को आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उनके सिंबल्स के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। तो अभी आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। Chemical equation is a symbolical representation of a chemical reaction. What is chemical reaction? Any chemical reaction is always involved in a chemical change. If there is a chemical change, a chemical reaction is involved, and chemical reaction can be easily represented in the form of symbols, and that is known as chemical equation. तो जब हम बोलते हैं तो बोलने में क्या है? केमिकल चेंज हो सकता है या तो फिर केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जब उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशंस है। क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशंस। So there are many different types of chemical reactions and each and every chemical reactions can be represented in the form of chemical equation। तो लेते हैं कैसे चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस का आपका रिएक्शन आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6, that is glucose plus oxygen। क्लियर? यहां पे देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O, दिस इज ग्लूकोज, इट इज ग्लूकोज एंड दिस इज सिंपल ऑक्सीजन। तो यही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हमने सिंबॉलिकल लिख दिया तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। जो केमिकल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसके सिंबल ले लेने हैं तो हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अभी आपको याद रखने लायक है कि अगर आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ऑक्सीजन O2 ही क्यों लिखते हैं, कार्बन C अकेला क्यों लिखा, CO2 CO2 ही क्यों हुआ, CO3 क्यों नहीं हुआ, CO4 क्यों नहीं हुआ।
तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने वैलेंसी वाला टॉपिक किया था कि भाई कैल्शियम है, फिर सपोज अगर हम देखें तो क्लोरीन है, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वैलेंसीज को इंटरचेंज करते थे, तो फॉर्मूला बन जाता था CaCl2। ये 1 इस तरफ आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो Ca1Cl2, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम क्लोराइड का। किसका बेटा? कैल्शियम क्लोराइड का। तो इसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली इन सब की फॉर्मूलाज बनती है बेटा। H2O की फॉर्मूला वैसे बनी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला वैसे बनी, वाटर ऑक्सीजन O2 भी इसीलिए लिखा जाता है। तो मतलब इन सब की फॉर्मूलाज दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी वैलेंसीज ऑफ एन एलिमेंट। तो उनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंगली अगर आपको फॉर्मूलाज बनाने नहीं आते बेटा, तो आपको केमिस्ट्री बहुत बोरिंग भी लगेगा और फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा कि ये कैसे याद रखें, वो कैसे याद रखें। तो आपको सबसे पहले ये केमिकल फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने होंगे बेटा। और ये केमिकल फार्मूलाज प्रिपेयर अगर आपके हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको केमिकल फार्मूलाज नहीं आते हैं तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में जो नंबर शेयर किया था उसी नंबर पे आप बेटा मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा जिससे आप सीख सको हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कि जैसे आपको मैंने बोला कि सोडियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला लिखो, that write the formula of a sodium sulfate. So how can we write the formula of a sodium sulfate? तो मुझे तो पता है it is Na2SO4, लेकिन ये अचानक से आया कहाँ से? So that is dependent upon the valencies of sodium and sulfate. वो कैसे पता चलेगा? तो उसी के लिए आपको एक वीडियो देखना है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने जो कल व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था आपके साथ, उस पर मैसेज करो तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा बेटा, तो आप देख सकते हो और सीख सकते हो। क्लियर? सो नाउ बैक टू द केमिकल इक्वेशन। तो आपने क्या किया बेटा? पहले तो आपने चेंजेस देखे, दैट वी हैव सीन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अवर सराउंडिंग। व्हाट आर द चेंजेस? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई कार भी रस्ट हो जाती है ना, कार का जो मेटालिक सरफेस है वो रस्ट हो जाता है, आयरन के आर्टिकल्स रस्ट हो जाते हैं, कॉपर वेसल्स होते हैं, कॉपर का टैंक होता है ना, पानी भरते हैं जिसमें कॉपर टैंक होता है, तो वो उसके ऊपर ग्रीन पेच आ जाता है, ग्रीनिश कलर आ जाता है। क्लियर? नाउ सिल्वर ऑर्नामेंट्स, चांदी सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? ब्लैक कोटिंग आ जाता है। हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, खाते हैं कुछ अलग है ना, अंदर क्या हो जाता है, कुछ अंदर ही अंदर कुछ नई नई चीज़ें बन जाती है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो डायरेक्टली हम खाते नहीं है बेटा, वो अंदर जाके बनता है बेटा। क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। फिर ये सारे चेंजेस हमने देखे, तो दैट इज ए फिजिकल चेंज। कहीं ना कहीं आग लग रही है, दैट इज अ कंबशन रिएक्शन, तो दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस बेटा हम हमारे डेली रूटीन में देखते हैं। नाउ उसे हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो बहुत सही है, लेकिन केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन है, सो दैट इज अ कंबशन ऑफ कार्बन। उसको ही अगर आप सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट लिखो तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन है। कौन सा केमिकल इक्वेशन है? कंबशन ऑफ कार्बन का। किसका केमिकल इक्वेशन है बेटा? वो एक केमिकल रिएक्शन को हम हमेशा इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बना दिया मैंने, लेकिन वो रिएक्शन कौन सा होगा? कंबशन ऑफ कार्बन। क्लियर? तो केमिकल चेंज में से केमिकल रिएक्शन मिला, केमिकल रिएक्शन में से केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया, तो शॉर्ट में खत्म हो गया। वो लंबा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो नाउ अनदर केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, इट इज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन एंड उसे हमने नाम दिया है फोटोसिंथेसिस। उसको अगर हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे देखो उसके सिंबल यूज करके हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा। तो जब भी हम इक्वेशन की बात करें बेटा, तो इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं। यहाँ पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड एक चीज होगी, दूसरा होगा राइट हैंड साइड पे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स। एंड दोज केमिकल फॉर्मूलाज और केमिकल कंपाउंड्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो आर नोन एज प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड द न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड द
new products are formed. The reactants and the products are separated by putting a arrow in between. The reactants and the products are separated by putting a arrow in between. कि बीच में आप एरो करोगे तभी आपको पता चलेगा that which are the reactants and which are the products. Generally, most of the time reactants are put on the left hand side and the products are written on the right hand side. Now the direction of the arrow shows the direction of the reaction. कि direction कौन सी direction में reaction हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? by seeing the direction of the arrow. कि आपको पता चलेगा ये एरो का डायरेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ है तभी तो पता चलेगा ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना है. सो नाउ वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ये ऐसा नहीं हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में. व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव द डायरेक्शन ऑफ द एरो. तो क्या क्या चीजें हुई? रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके बीच में एरो होता है. एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है कोई भी ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो, दो ही रिएक्टेंट हो, तीन ही रिएक्टेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है. कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं. इफ देर इज मोर देन वन रिएक्टेंट तो हमें उसके बीच में प्लस साइन करके उनको सेपरेट करना है. सी हियर वी हैव टू रिएक्टेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. हियर वी हैव टू रिएक्टेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो बीच में हमने क्या कर दिया? प्लस. तो बीच में प्लस करोगे तो सेपरेट हो जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ दिस टू आर दी रिएक्टेंट्स. क्लियर? यहाँ पे भी देखो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बीच में हमने क्या कर दिया बेटा? प्लस साइन. क्या कर दिया बेटा? प्लस साइन. तो हो गए सेपरेट. सिमिलरली यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर प्लस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? दो प्रोडक्ट्स है तो हमने क्या कर दिया? बीच में प्लस साइन कर दी तो हमने प्रोडक्ट्स को कर दिया सेपरेट. प्रोडक्ट्स को कर दिया सेपरेट. क्लियर? उसमें कुछ दो केमिकल कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं कि भाई कोई और कंडीशंस आपको मेंशन करनी पड़े कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और वाटर के बीच में नहीं होता. क्यों? वाटर हमारे बॉडी में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में भी होता है ना. हम प्रोड्यूस ही कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले तो बॉडी में होगा फिर बाहर निकालेंगे. सो वी हैव वाटर इनसाइड अवर बॉडी एज वेल एज वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड अवर बॉडी. क्लियर? बट उसमें रिएक्शन होता नहीं है. वाई? फॉर रिएक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ ईच अदर वी रिक्वायर ए स्पेशल कंडीशन दैट वी रिक्वायर सनलाइट एज वेल एज वी रिक्वायर क्लोरोफिल. तो ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन है तो हम एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं. क्लियर? और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. क्लियर? दूसरी चीज अगर हम देखें तो बेटा कि जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कंबशन ऑफ कार्बन तो यहाँ पे बन रहा है बेटा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन आपने देखा है कोल को जलाते देखा है? कभी कभी देखा है कहीं पे आग लगी है पेपर को जलाते? दैट इज ऑल्सो कंबशन ऑफ कार्बन. हाँ, पेपर को जलाते हुए तो देखा ही होगा. तो जब पेपर को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो धुआं निकलेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. जो गैस प्रोड्यूस होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. प्लस वहां पे गर्मी हो जाएगी या ठंड होगी तो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस हीट. क्या लिख सकते हैं बेटा? प्लस हीट. और क्या रिलीज हो रहा है? एंड लाइट. एंड light, heat and light. Clear? So when carbon and oxygen reacts with each other it produces carbon dioxide and releases heat and light. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जिसमें हीट आपको खुद सप्लाई करनी पड़ेगी. कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपको हीट खुद सप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो रिएक्शन होगा. तब जाके वो रिएक्शन होगा वरना होगा नहीं. तो यहाँ पे एक ऐसा और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं. चलो बढ़िया सा एग्जांपल है CaCO3 दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स हीटेड अप उसे क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कौन से दो पार्ट में हुआ कैल्शियम कार्बोनेट? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? ये कब डिवाइड हुआ बेटा? अपने आप से डिवाइड नहीं हुआ, उसको हमें क्या करना पड़ा? हीट करना पड़ा. अगर हमें हीट करना पड़ता है तो एरो के ऊपर लिखेंगे. अगर हीट रिलीज होती है तो प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिखेंगे. समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, when calcium oxide reacts with water it forms calcium hydroxide.
ये याद रह जाएगा बेटा। अभी वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, इतनी सारी चीजें याद कैसे पता चलेगा कि ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो ऐसा ही बनता है। वो भी आपका मैटर नहीं, हो मेरा काम है, मैं आपको सिखाऊंगा, वो याद भी रह जाएगा, इजीली याद रहेगा। बट नाउ व्हाट आपको सीखना क्या है कि भाई कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उनके बीच में एरो लगता है। डायरेक्शन ऑफ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इफ देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट्स और मोर देन वन प्रोडक्ट, अगर मतलब दो हैं तो बीच में प्लस कर दो, तीन है तो उन सबके बीच में प्लस प्लस करते जाओ। क्लियर? इफ हीट इज रिलीज, प्रोडक्ट में रिलीज हो रही है तो प्लस हीट लिखो, अगर हीट आपको सप्लाई करनी पड़ रही है तो एरो के ऊपर हीट लिखो। क्लियर? यहाँ पे देखो हीट रिलीज होगी तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट। फिर से अगेन याद करवा रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर कैसे पता चलेगा हीट सप्लाई करनी है या हीट रिलीज होगी, वो आएगा बेटा, सिखाएंगे हम आपको, याद रह जाएगा। बट फॉर अप टिल नाउ आपको क्या ध्यान देना है बेटा कि अगर ऐसा होगा तो हीट आपको सप्लाई करनी है तो यहाँ पे ऊपर लिखो, और अगर रिलीज होती है तो प्लस हीट लिखो। क्लियर? कौन से रिएक्शन में हीट सप्लाई करनी है, कौन से रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज माई टॉपिक। क्लियर? वो मेरा काम है, मैं आपको करवाऊंगा, वो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हो रहा है आपको पता चल जाए तो ऐसे लिखना है। कुछ आलसी लोग हैं और स्मार्ट लोग भी कह सकते हैं, हर बार आलसी होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको हीट नहीं लिखना है तो आप सिर्फ ऐसा ट्राइंगल कर सकते हो। यहाँ पे इस ट्राइंगल को हम कहते हैं डेल्टा, और इसी ट्राइंगल का मतलब है हीट। ये जो ट्राइंगल हमने बनाया उस ट्राइंगल का मतलब क्या है, उसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट। तो अगर आपको HEAT हीट नहीं लिखना है तो ट्राइंगल बना दो, तो उतना काफ़ी हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, वो आप देख लो एक बार बेटा। सारी चीज़ हमने बेहतरीन तरीके से की है। आज का आपका काम क्या होना चाहिए, यू हैव टू राइट द 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 4 पॉइंट फिजिकल चेंज, 4 पॉइंट केमिकल चेंज। टेबल बना के डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस लिखना है आपको बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड ए केमिकल चेंज। 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 4 पॉइंट्स फॉर द फिजिकल एंड 4 पॉइंट्स फॉर द केमिकल चेंज। What is a chemical change? What is a chemical reaction? What is a chemical equation? And how to write a chemical equation? So these are the 5 questions I think जो आपको लिखने हैं। कौन से 5 questions हैं, नोट डाउन कर लो। First one, 4 points of difference between the physical change and a chemical change. Second question, what is a chemical change? Third question, what is a chemical reaction? Fourth question, what is a chemical equation? Fifth question, how to write a chemical equation? How to write a chemical equation? So these are the 5 questions in your homework. आपकी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। आज ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर चुदासमा का मैसेज आया है बेटा कि स्कूल्स जल्दी ही रीओपन होंगी। तो आपको लास्ट ईयर पता था कि 9th में क्या हालत हुई थी जब स्कूल रीओपन हुए थे, पता है ना आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नया नया लग रहा था। क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट लर्न दी सब्जेक्ट्स वेरी वेल इन आवर फ्री टाइम। तो अभी आपके पास जो फ्री टाइम है उसमें वीडियोस को देखते रहो। दिस टाइम इट इज़ बोर्ड, दिस टाइम इट इज़ बोर्ड। सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है, वैक्सीनेशन का ड्रिल अच्छा जा रहा है, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगी, तो इस साल हम स्कूल मार्क्स देने वाले नहीं हैं। तो बेटा आपको थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान दो और ये 5 क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।